right? So what we did, एक बार ध्यान से देखना, the question is under root of this was given. So step first is, right, what you have to do, take out the domains of the function, right? Domain liya, so where the x will lie, that's we are getting there, right? And I have transferred this 9 minus x, so this squaring both sides. So squaring both sides, so I'm getting, right, after cancelling out, I'm getting this thing, right? Again, squaring both sides, right? So after simplification, we are getting this thing, but now we have to check this x is equal to 7 and 8 will satisfy the original condition or not, because x must lies between 6 to 9, and we are saying the numbers are 7 and 8. So this is satisfying. So our solution or answer will be 7 and 8, right? This was question number 610, right? 610 के बाद second question जो था I guess 611, right? 611 under root of 2x plus 5 plus under root of 5x plus 6 is equal to under root of 12x plus 25, right? We have to solve this. Okay, anyone? Anyone from the group? Something is coming. Okay, let's start. तो ऐसी शांति मचा दी हो सब कि क्या कहा जाए। ट्राई तो करने दो सर। अरे ये ट्राई के लिए पहले ही दिया हुआ था क्वेश्चन, ये अभी का थोड़ी है। सभी ने ट्राई नहीं किया ना सर? थोड़ा थोड़ा ही कर पाया सर, स्टार्टिंग की क्वेश्चंस के बेस पे। शर्म भी नहीं लगता, बोल भी रहा है सीधा, बताओ। सब बदमाश है एक नंबर का। टेक योर टाइम ना, 3 मिनट।
Okay, last 1 minute. Very good, very good. Let's start. See, squaring both sides, so you are getting right 2x plus 5x at 7x 5x plus 5 20 14, right? So squaring again both sides, whole square, you're getting 4 times 10x square plus 12x plus 25x plus 30 is equal to 25x square. सर जो भी लिख रहे हो स्क्रीन पे सर जो भी Sir, लिख रहे screen is स्क्रीन पे not नहीं आ रहा। visible. सर अभी 25x square 140x plus 196, तो सॉल्व करने के अलावा कुछ वैसा खास है नहीं। 40 15x square प्लस it's 100 140 8x माइनस 120 70. minus 120 and 76 is equal to 0। फैक्टराइज भी हो रहा है, राइट? मेरा क्वेश्चन अब ये रह गया बस, राइट? सिंपल, द क्वेश्चन इज 15x स्क्वायर plus 8x minus 76 is equal to 0, right? Now, अब यहाँ पर मेरे को सिंपल फैक्टराइज करने, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेता हूँ या फैक्टराइज कर लेता हूँ। अगर फैक्टराइज दिखाई दे रहा है और वहाँ से वर्किंग हो पाती है तो फैक्टराइज कर लेता हूँ। अगर फैक्टराइज नहीं दिखाई दे पा रही, दिक्कत है, तो कोई दूसरा तरीका हम लोग और अपना लेंगे, राइट? यहाँ से 15x स्क्वायर एंड 76, राइट? तो अगर मैं यहाँ से ऐसा लिखूं 15x स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, आई गेस मेरा काम बन गया। x स्क्वायर माइनस 4 15 टाइम्स प्लस 8 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो एक सॉल्यूशन आ गया। सेकंड इज x प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 15x is equal to minus 38 by 50, राइट? लेकिन यहाँ पर मुझे चेक करना चाहिए कि माइनस दोनों वैल्यूज हमारे सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। यहाँ से है x ग्रेटर देन माइनस 5/2, यहाँ से है x ग्रेटर देन माइनस 6/5, यहाँ से है मतलब -1 से ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ जो आ रहा है वो -2 से नीचे जा रहा है। दैट्स द रीजन विल से कि दिस मस्ट नॉट बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरा सिर्फ ये है जो
होना चाहिए। इज इट ओके? राइट, आपको चेक कर लेना चाहिए हमेशा एक बार, राइट? जरूरी है कि आप चेक कर लो, अदरवाइज वो दिक्कत जाएगी आपको, राइट? Sir, can you scroll up? That's it. Just a minute. Okay. Good. नेक्स्ट पे जाऊं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, तुम लोगों को अटेम्प्ट करके रखना था, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब पहले से हमेशा करके रखा करो यार। वेरी बैड। 1 + x² √ 1 + x² = x² - 1. Do it fast. Right? 3 minutes again.
what is 0? 0 solution and x is equal to 0 is a solution. Let's try. Start करता हूँ, right? Let x is equal to मैंने एक t ले लिया, right? X square. So t must be greater than equal to 0 because x square is equal to t. Start करें ना? Yes, sir. Right? So x square is equal to मैंने t suppose कर लिया और t greater than equal to 0, right? And this is 1 plus t to the power 3 by 2 is equal to t minus 1, right? Squaring both sides, 1 plus t whole cube is equal to t minus 1 whole square. T cube plus 3t square plus 3t plus 1 is equal to t square minus 2t plus 1. 1 cancel out, right? 1 cancel out. Now we are getting t cube plus 2t square plus 5t is equal to 0. So t into t square plus 2t plus 5 is equal to 0, right? Means one value is t is equal to 0 and other value is not possible because this is coming as t plus 1 the whole square plus 4 is equal to 0. That's not possible. Discriminant less than 0, right? T is equal to 0. But t is equal to 0 having a problem. Why? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें ये पता है मुझे कि t minus 1 must be greater than 0 क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है. अब ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो राइट साइड को भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमने स्क्वायर किया है तो इसे रूट बढ़ाना बोलते हैं जिसको बोला जाता है एक्सट्रीनियस रूट्स, राइट? इसे हम लोग रीड करते हैं एक्सट्रीनियस रूट्स. तो हमने अपने तरफ से स्क्वायर करने के कारण हमने अपने तरफ से इसके रूट्स को बढ़ा दिया है. दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग वन एक्सट्रीनियस रूट दैट्स t is equal to 0. और यहाँ से तो नो सॉल्यूशन है. मींस वेरी गुड. काफी लोगों का था बट वेरी गुड कि नो सॉल्यूशन ऑन दिस, राइट? Look at this. ध्यान से. सिक्स वन उसके बाद पे आपको आने हैं नंबर कोई और है. 619 मेरे पास है. उसके पहले का किसी के पास कोई नंबर है 619 के पहले? 616. 616. Done this one. 616. 1 minus x is equal to under root of 1 minus under root of 4x square minus 7x to the power 4. Right? This is a simple one. क्या problem होगा? What is the problem in this? Yes, last वाले question का final answer था no solution. Right? 616 में प्रॉब्लम क्या हुई? What is the problem? I am not able to solve this. अरे ये सबसे गंदा स्टेटमेंट है. ये नहीं, थोड़ा सा मैच्योर टाइप का बात. क्या नहीं सॉल्व कर पाए? पहला स्टेप तो दिख रहा है दोनों तरफ स्क्वायर होगा, 1 दोनों का कैंसिल हो जाएगा, राइट? उसके बाद फिर एक बार स्क्वायर होगा, मतलब 2 बार मेरे को स्क्वायर करने के बाद में सॉल्यूशन देखने हैं. x का पावर x स्क्वायर एक 0 की तरफ अपने आप जा रहा है. x इज इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन दिख ही रहा है. उसके अलावा और सॉल्यूशन जो है वो x स्क्वायर के बाद आएंगे. इतना दिखाई दे रहा है. डू इट फास्ट. मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम.
Done, sir. I guess, I guess everyone is getting this. पहले स्क्वायर किया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 7x to the power 4. 1 1 cancel out, right? Minus cancel out. 2x minus x square, the whole square is equal to 4x square minus 7x to the power 4. 4x square plus x to the power 4 minus 4x cube. 4x square minus 7x to the power 4, cancelling out. 5x to the power 4, sorry, 7 था ना? 7x to the power 4 plus 1, so 8x to the power 4 is equals to 4x cube, right? एक तो x cube is equal to 0 आ गया और एक आ गया x is equal to 1/2. 0 and 1/2 आ रहा है, 2/3 कैसे आ गया? नहीं सर 1/2 ही आएगा। तो हाफ ही आ रहा है। ठीक है ना? कोई नहीं, it's okay. 6-1, this was 616. 616 के बाद था 619, right? Fine. 5 plus cube root of x का अंडर रूट प्लस 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ x का अंडर रूट इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x. यही है, ठीक है? टेक योर टाइम, मैक्सिमम 3 मिनट्स. ये सिंपल है थोड़ा, और सभी सिंपल ही है वैसे.
Very good, very good, very good. Not a big deal. X, this is equal to t. Cube root of x is treated as t, right? So this is 5 plus t is in the under root plus 5 minus t is in the under root is equal to t, right? Now we know that t plus 5 must be greater than equal to 0. 5 minus t must be greater than equal to 0. So t less than equal to 5, t greater than minus 5. Minus 5 to 5 के बीच में ही मेरे को आंसर आने हैं. And from this I can say t greater than equal to 0, right? Why t greater than equal to 0? So try to understand this. Both the quantity, these two are positive. So 100% t must be positive. So I'm saying t greater than 0, t less than 5, t greater than minus 5. So the answer must be between 0 to 5 only, right? Now, start squaring both sides. 5 plus t plus 5 minus t plus 2 times under root of 25 minus t square is equal to t square. T cancel, 5, 5, 10. 2 under root of 25 minus t square is equal to t square minus 10. Right? Then again divided by 2. 25 minus t square, the under root is equal to t square by 2 minus 5. The reason of this would be, ये next step में पता चलेगा मैंने क्यों divide करना चाहा. Now again squaring both sides, right? 25 minus t square is equals to t to the power 4 by 4 minus 5t square plus 25. 25 cancel out, right? This 4t square is equal to t to the power 4 by 4. We know that a to t square is equal to 0 आ गया मेरे पास, right? And second is t square is equal to 16. So t is equal to plus and minus 4, right? T is equal to plus and minus 4. And what we have to do, right? T was nothing but x to the power 3 is plus minus 4. So x is equal to plus or minus 64. But again, go back to the question, right? T के लिए मेरे पास था पॉजिटिव होनी चाहिए थी एंड लाइज बिटवीन 4 के लिए, तो एक आंसर सही आ रहा है. +1 -1 will not be the answer. 64 is correct. Hope everyone is getting this again. बस पेशेंस 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 के साथ चलते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से क्वेश्चंस होते जाएंगे. The basic requirement is the patience. 619, right? 619 के बाद क्या नंबर था प्लीज? सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमने इसमें वैल्यूज ग्रेटर देन 0 क्यों लिए सिर्फ. What is the value of under root 16? Under root 16 की वैल्यू क्या होती है? 4. 4 या प्लस माइनस 4? सर t is greater than 0 ना, तो -4 कैसे होगा? t की बात ही नहीं हो रही, मैं तो बोल रहा हूँ अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 4 और 4 प्लस माइनस 4. अगर आप सिर्फ अंडर रूट 16 पूछ रहे हो, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको छोड़कर सब लोग आंसर मत करो यार. सर 4 ही होगा. 4 होगा या प्लस माइनस 4? क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है तो फिर एक ही रूट लेंगे हम इसका. What is the value of under root 16? Only question is this, what is the value of under root 16? What will bit for? Plus minus 4 or 4? Jaldi, fast, fast, fast. So 4. Sure? Yes sir. Reason why? Why? कोई reason? Because the under root is a positive quantity. Under root positive होता है.
रीजन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ये क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? 5 + t is in the under root. Positive. 5 minus t under root is positive or negative? Positive. Positive. पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Positive. Yes, sir. Got it. This is positive, so this must be positive, right? Yes, sir. Next number, please. Question number, please. 619 के बाद में 625 तक कोई भी नंबर हो where you want to discuss, please, but fast. अमोघ, अमन, आदित्य, हरिप्रिया, प्रणय, आदित्य, उदय, नव्या, जेवल, विनीत, फास्ट, डू इट फास्ट। तो मैं ये जूम कर रहा हूँ 625 तक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? 626 to 665, डू इट फास्ट, जल्दी से देखें, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। सर 625। डन ना? ये क्यों पूछा? x³ + 8 के अंडर रूट को ही आप ले लो t, राइट? तो ये आ जाएगा t + t² + t = 6, तो t² + t - 6 = 0, t + 3 t - 2 = 0, t = -3 नॉट पॉसिबल, t = 2, t की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं, राइट? x³ + 8 = 4, x³ = -4, राइट? तो x = -4 to the power 1/3 सर ये कुछ भी नहीं समझा। है। क्या मजाक कर रहे हो? मुझे कुछ समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ना था। सर आ गया। ये जो मेरे पास ये जो गिवन है, इसे मैं एक, अगर मैं ये जो भी गिवन है ये दो क्वांटिटी मेरे पास, तो मैं शुरू से ही एक बार करता हूँ, क्या ये तो सिंपल सी बात जाएगी। देखो कैसे क्या है, इसे समझना ना। ये तो बेसिक क्वाड्रेटिक पे जाना होगा आपको, दिखाता हूँ क्या हो रहा है। देखो ये एक नंबर है x³ + 8 to the power 1/2 और ये है x³ + 8 to the power 1/4,
इज इक्वल टू 6। यही क्वेश्चन है, इज इट ओके? हाँ यही क्वेश्चन है ना? हाँ तो बोलो। यस सर। अब इस क्वेश्चन में कुछ कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन में? यस सर। दोनों के बेस नंबर जो है दोनों में सेम है, राइट? इसका पावर 1/4 है, इसका पावर 1/2 है, राइट? तो मैं जैसा भी चाहूं दोनों बेस को मैं बार बार ना लिख पाऊं, उसके लिए मैंने 1/4 करके इसे t ले लिया। ठीक है, चलेगा? ये समझ में आ रही है? क्रिएटिंग क्वाड्रेंट मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसको t टर्म तो दे सकता हूं। अगर मैं इसे t लिख रहा हूं तो x³ + 8 का पावर 1/2 मतलब दोनों तरफ स्क्वायर किया होगा तो वो t² रहा होगा, राइट? तो मेरे पास क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t² + t = 6। क्या समझ में इसमें नहीं आया बताना मेरे को? आवाज नहीं आ रही। समझ गया सर अब। तो t कितना आ जाएगा? t + 3 t - 2 = 0। t ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब t = 2। t की वैल्यू वहां से पुट कर दिया, x की वैल्यू 4 आ गई, 8³ आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24। 25 देखें। 25 भी इनफैक्ट थोड़ा सिंपल ही कहूंगा इसे भी। x √5 minus √x √x is equal to 56, right? एक्चुअल लिखा हुआ क्या है उसे रीड करो। ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ये है x⁵ 1/5 प्लस 1 हो गया, ये आ जाएगा x⁵ 1 + 1/5 का अंडर रूट, राइट? माइनस ये क्या लिखा हुआ है x⁵ 3/2 का पावर 1/5 = 56, राइट? तो ये हो गया 6 x⁵ 6/10 माइनस x⁵ 3/10 = 56। कुछ आया? कुछ समझ में आई बात क्या? x⁵ 3/10 को मैंने t ले लिया तो x⁵ 6/10 जो है वो t² हो जाएगा। ये आ गया t² - t - 56 = 0, t - 8 t + 7 = 0, t की वैल्यू आ गई 8, राइट? t की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ मैं 8, राइट? तो 2 to the power 10 आ गया तो x की वैल्यू आ गई 1024। अगर आप बोल सकते हो कुछ भी समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा सकता हूँ, अगर आ गया तो इट्स वेरी गुड, नहीं आया तो एकदम बिना कोई दिक्कत के आप बोल लेना। मैं केवल पावर पर प्ले किया हूँ, जो पावर इसका 1 पावर है, इसका पावर 1/5 है, दोनों को मिलाया तो ये आ गया, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है तो 3/2 आ गया। बाहर के पावर जो 1/5 थे दोनों को ट्रांसफर कर दिया, राइट? तो ये मैंने जैसे क्वांटिटी को t लिया तो अगर स्क्वायर करूंगा तो पावर 3 का 6 हो जाएगा तो वो t² हो गया, ये मैं लिख डाला, राइट? ये लिख दिया मैंने, उससे फैक्टराइज हो गया। सही है ना? ब्यूटीफुल, मतलब बड़ा सुंदर सा अपने आप। ओके, आदित्य सिंह ठीक है। सर t = -7 रिजेक्ट क्यों करेंगे? t = -7 का क्या करेंगे? अब बहुत हम लोग ये हो गया, देखो ना, t = -7, t क्या था? t की वैल्यू क्या है? मतलब x के टर्म्स में हमने क्या रखा था? x⁵ /10 = -7, राइट? ये गिवन है, राइट? 3 को मैं उधर ले गया, -7 to the power 1/3 का पावर 10, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, बट अंडर रूट भी दिया हुआ है मेरे पास, x के साथ एक अंडर रूट लिखा हुआ था तो नेगेटिव क्वांटिटी लिखने में मेरे को दिक्कत जाती
बट दोनों में ही अंडर रूट एक्स दिया हुआ है तो नेगेटिव मैं ले नहीं सकता, इसलिए उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन में यहाँ वाले स्टेप्स पे आपको यहाँ पर दिख रहा है अंडर रूट एक्स है जो नेगेटिव नंबर को नहीं सस्टेन कर सकता, तो इसे मैं बोल दूंगा एक्सट्रेनियस रूट है, बाहर का है, हम इसे सपोर्ट नहीं करने देंगे। ओके ओके एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस सर। So what is the answer? हाँ, 2 to the power 10 आया था ना, Okay, sir. 2 to the power 10 is 1024 ना, 102. ये t था ना, x to the power 3 by 10 is equal to 8, पहले 1 by 3 पावर करूंगा तो वो 2 चला जाएगा, और फिर 2 का पावर 10 कर दिया तो जो चाहिए वो आ गया। किसी ने 626 भी लिखा है, 626 किसी का है क्या ये क्वेश्चन? क्योंकि जो फर्स्ट गिवन है अगर उसे मैं t लूं तो सेकंड 1 by t है इज इक्वल टू 2 है, और ये t इज इक्वल टू 1 को ही सपोर्ट कर रहा है। t इज इक्वल टू 1 का मतलब है 5 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट गया ना। 6 to 6 के बाद से 6 to 7 से लेके 666 तक में जो भी डाउट्स हों, मैं मुझे मालूम है आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, तो ऐसा शर्माने का बात नहीं है, गो थ्रू करो, जो भी लग रहा है टफ है वही पूछ लो। दिखने में ये सब क्वेश्चन डरावने लगते हैं ना, थोड़ा हिम्मत दिखाओगे सब क्वेश्चन सिंपल है। 3 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पिक करो कौन कौन से हैं। ओके, सेंड 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 सेंड, जितना हो गया वो भेजते तो जाओ जल्दी। सेंड क्वेश्चंस, सेंड क्वेश्चन नंबर्स प्लीज। सिक्स 643। देखना जो हो गया वो रिपीट ना करें, ये नंबर आप देखते जाना कौन कौन से नंबर यहाँ लिख दिया हूं मैं। 648, 649, 633। लेट्स स्टार्ट, पहले इतना ही करते हैं, बाद में और क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। फर्स्ट स्टार्ट विथ 633, राइट। 633 x plus
क्यूब रूट इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये गिवन है। सबसे आसान सभी तरीके आसान होते हैं, बट इट वुड बी एडवाइजेबल क्या होगा कि x को मैंने t क्यूब ले लिया, राइट। x को जैसे मैंने t क्यूब ले लिया तो आई कैन से दिस इज t क्यूब प्लस t -2 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस एज t क्यूब -1 प्लस t -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट से फैक्टर आएगा एक t -1 बचेगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और सेकंड से भी +1 बचेगा। ध्यान से देख पा रहे हो तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, राइट। तो इससे तो रियल रूट्स नहीं आएंगे। t इज इक्वल टू 1 इज ओनली द सॉल्यूशन। नहीं जेबल, सही है ना? सिंपल था ना? 640 640। डरना मत, बस डरना मत। सिंपल सा यही है, यही डर खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मेरे को क्यों डरा रहे हो? सर एक बार ऊपर वाले का लास्ट तक दिखाएंगे फिर से। 1 मिनट बेटा। ठीक है, हो गया? डन ना? यस सर। अनुष्का डन ना? टेक योर टाइम, मैक्सिमम 3 मिनट्स। एकदम होगा, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। डू इट फास्ट फास्ट।
Very good, very good. And sir, बस इसी की रिक्वायरमेंट है. स्टार्ट करोगे 100% you'll get into this, right? Let's start करें. Yes, sir. See, this is squaring both side. 5 minus under root of x plus 1 plus under root of 2x square plus x plus 3 is equals to 1. This 4 is equal to under root of x plus 1 plus under root of 2x square plus x plus 3, right? Again, 16 is equal to x, or we can write directly as 15 minus x whole square is equal to 2x square plus x plus 3. So x square minus 30x plus 225 is equal to 2x square plus x plus 3. This will be x square plus 31x minus 222 is equal to 0. Right? This is plus now. Now we have to factorize this. X square minus 36 plus 31x minus right. Obviously, you are getting x square, x plus 6, x minus 6 as 2 this thing plus 31 x minus 6 is equal to 0. So x minus 6 is equal to 0 is 1, and other is x plus 6 plus 31 is equal to 0. So minus 43. Just you have to look back into this. Minus will sustain or not. So negative value is not going there. So only the positive. सही होगा I guess सभी का. This was question number 640. 640 के बाद कौन सा था? 643. बी केयरफुल. सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते जाना है. 643. ध्यान से. 2x 4x square plus 3 minus 1 minus 12 x square cube plus x is equal to x square minus 11. Right? Do it fast.
वेरी गुड विनीत, नमन, जेबल, अनुष्का, एक बार चेक जरूर कर लेना अपने आंसर्स। वेरी गुड। Do it fast, do it fast. The domain is not required in this question. ध्यान से देखना। कोशिश क्या रहती है ना कि किस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बुद्धू बनाने की कोशिश की जाए। ये ध्यान से देखो, ये जो टर्म्स गिवन है इसको स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। ये आ जाएगा बेटा। ये दिख रहा है। उसने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश की थी कि अपन कुछ दूसरे जगह पर नजर दौड़ाएं, तो उसको स्क्वायर करे, क्यूब करे, बट एक्चुअल में जो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर था, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, यही a माइनस बी होल क्यूब है। राइट? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 का होल क्यूब का पावर 1/3, क्योंकि ये पावर 1/3 था, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस एक्स। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 will be 0. X square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. Obviously, you can factorize as x minus 5, x plus 2 is equal to 0. ये ध्यान से देखो, कभी कभी आपको वो बुद्धू बनाने का पूरा कोशिश करेगा। अब ये अपने को
जो पढ़ी हुई है, जो आराम से हमने देखा हुआ है, उसको यूज करने की बात है। डन। दिस वाज 643, राइट? 643 के बाद था 648, राइट? 648। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दोनों के पावर का एलसीएम ही 6 आ रहा है, तो इसे राइट साइड ट्रांसफर कर दिया मैंने और दोनों तरफ पावर 6 लगा दिया, राइट? हाँ, ये बाद में ख्याल रखूंगा कि वैल्यूज हम लोग बाद में पुट करके देख लेंगे। पावर 6 लगाऊंगा तो दिस इज 3/2, दिस इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यूब, राइट? तो एक चीज तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो 0 हो गया, राइट? बाकी बचा 3/2 x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1। कुछ भी दिख रहा है आप लोग को? आप लोग कुछ भी पूछ ले रहे हो? नहीं, गलत काम। क्वाड्रेटिक सॉल्व। हाँ, कुछ भी अजीब सा लगा पूछ लिए। 649 सेम बेटा, राइट साइड में ट्रांसफर किया और दोनों तरफ पावर 6 ले लिया। 662 ये तो आप डिस्कस। एक बार प्लीज क्वेश्चन 648 दिखा सकते हो और एक बार? 648 हाँ हाँ दिखा सकता हूँ, ये देख लो। ओके सर, हो गया। डन। यस सर। Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन देखना। x प्लस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट ऑफ 17 minus x square is equal to 9, right? Solve for x, right? Take your time, फिर मैं बताता हूँ।
वेरी गुड, चेक करो एक बार अमोघ, उदय वेरी गुड, नमन, पार्थ। डन। ओके, राइट। कई डिफरेंट वेज हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्विंग के, राइट। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पर ये वर्किंग किया, राइट। 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो गिवन है, राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, वहां पर है। ओ जस्ट अ मिनट, राइट। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो मैं जस्ट आई एम सॉल्विंग दिस, राइट। यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो भी मैं लगा सकता हूँ, एंड जैसा भी चाहूँ, लाइक 18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
16 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। मैं चाहूँ तो ये भी लगा सकता हूँ, राइट। यहाँ पर भी 9 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स, बट ध्यान देना ना, कई मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैंने जैसे कहा, मैंने क्या किया, दोनों तरफ +1 कर दिया। ये देखना काफी प्यारा मेथड होता है, राइट। तो अगर मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया तो व्हाट आई एम गेटिंग 1 6 प्लस और 1 into 1 plus under root of 17 minus x square is equals to 10. Getting this thing? क्या हुआ उसे समझना। अगर a plus b plus ab is equal to some 9 given था, मैंने दोनों तरफ +1 किया। ये बहुत अधिक मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला, 1 plus a 1 plus b is equal to 10। ये सर यही मेथड से कर रहा था, लेकिन आगे जाकर वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही बन जाता है सर। सर यही मेथड से किया था मैंने सर, लेकिन आगे जाकर वो ऊपर वाला फॉर्मूला ही बनता, 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए माइनस 1 किया था सर। तो फिर सर वही सेम चीज रिपीट हो गई थी। आप बोल रहे हो तो मैं कर देखता हूँ। 1 प्लस एक्स ये कर दिया मैंने, 17 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 9 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। देखो ऊपर में जो था वही फॉर्मूला, या तो वहां से लाओ आप या यहाँ से लाओ। हाँ सर, यहाँ से ही लाया था सर। मतलब सॉल्व करने के लिए आप दोनों में से जहां से भी मेथड को चाहे क्लिक कर सकते हो, कि जहां से दोनों वैल्यूज हमारे पास आ सकती है, दोनों के दोनों वैल्यूज हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो यस सर। क्वेश्चन जब गिवन है, मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन अगर गिवन है ना, तो सॉल्व करने के आपके कई डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, राइट। जैसे आई सेड कि पहले उसको सॉल्व कर लिया, एक को भेज दिया, फिर दूसरे को वहां पर रखने के बाद में आई एम डूइंग दैट, दोनों अलग अलग स्क्वायर कर लिया या जो भी नंबर्स हमारे पास, राइट। मैंने ये नंबर ही गिवन जो है, राइट, x 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर मैं स्क्वायर करूं तो दोनों तरफ ये स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर 1 plus 17 minus x square plus twice of under root 17 minus x square is equal to 81 minus twice of under root 17 minus x square plus 17 minus x square. Getting my point? सर हम x वाली टर्म को 9 माइनस एक्स करके लिख के भी कर सकते हैं ना क्वेश्चन? हाँ हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर करके, मतलब आपको स्क्वायर ही करना है, आप जितने जैसे आप जाना चाहो, राइट। तो दोनों तरफ स्क्वायर, आप जहां से भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो, यू कैन गो फॉर दिस, राइट। 18 माइनस मतलब ये आ गया 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही दोनों तरफ से एक ही सॉल्यूशन आएंगे आपके पास। दिस इज 98 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 17 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसे ले गया ये 19, राइट। ये एक तरफ मैंने रखा तो 19 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 98 इज इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स। तो ये मैं बोल रहा था, अगर आपके पास जो गिवन था ना x प्लस एक्स अंडर रूट 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बहुत सिंपल सा भी आप जा सकते थे, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। 17 माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आपके एक ही सॉल्यूशन के तरफ जाने हैं, ये आगे, राइट। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 17 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपैंड दिस,
ओके राइट, वही सॉल्यूशन मेरे पास, वो घूम फिर के मेरे को वहीं पर आना है, राइट। वही चीज मैं दिखा रहा हूँ कि सॉल्यूशन के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कहाँ से आप स्टार्ट करोगे, जहां पर से भी आप स्टार्ट लोगे आपको एक ऐसा रिजल्ट है जो बार बार आपके सामने आ ही जाएगा, राइट। अब मान लो यही आ गया, ये दोनों मेरे पास हैं, राइट। इसे सॉल्व करने का देखना अभी बड़ा प्यारा सा अभी एक अच्छा ये आएगा। एक मिनट, to ask something, Srishti? You want to ask something? Okay. मैं ये बोल रहा था कि जो गिवन है मेरे पास 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इज इक्वल टू 10, राइट। इज इक्वल टू 10, ये दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन मेरे को 10, राइट। अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो 1 प्लस एक्स, राइट, 17 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर नहीं समझा। अभी समझा देता हूँ बेटा। 1 प्लस एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं दोनों तरफ ये जो नंबर गिवन है इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब समझते हैं ना? हाँ सर। राइट, दोनों तरफ मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। राइट, तो अपने आप ये पूरा का पूरा ये क्वांटिटी इस तरफ ट्रांसफर होगी। नाउ यू नो दिस कि दिस इज 16 प्लस एक्स। या तो मैं पूरा ओपन करूं या जो यहाँ गिवन क्वांटिटी है बाय 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं और कई डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं। अब उन थॉट में आप कहाँ तक ले जाओगे क्वेश्चन को, कैसे उसे सॉल्व कर पाओगे, ये पूरी तरह से डिपेंड आप पर करता है कि आप कहाँ पर इस क्वेश्चन को ड्रैग करके ले जाना चाह रहे हो। लेकिन ध्यान दो, आपको जो क्वांटिटी चाहिए या जो यहाँ पर सॉल्व होने हैं, राइट, ये गिवन है x प्लस जो आपको सॉल्व करना चाहिए, ध्यान से देखना ना, 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। राइट, अंडर रूट से मुझे तो ये बात मालूम है कि x की वैल्यू -4 से +4 के बीच में ही रहेगी, उससे थोड़ा सा ऊपर होगी, मतलब -√17 से +√17 के बीच में ही वो वैल्यूज रहनी है। राइट, ये तीन वैल्यूज को जैसे मैंने 1 प्लस कर दिया था, मेरे पास जो क्वांटिटी आई थी वो आई थी एक x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 17 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 10 का मतलब होता है 2 into 5 या 1 into 10। अब दोनों क्वांटिटी में 1 तो हो नहीं सकता, x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती। राइट, अगर मेरे को 10 लाना है और दो इंटीग्रल वैल्यू जा रही है, अंडर रूट की वैल्यूज मेरे पास हटना चाहिए, तो मैं साफ बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 पर दिस इज कमिंग एज 5 एंड x इज इक्वल टू 4 पर दिस इज कमिंग एज 2। जब एक बार ये 2 के लिए जाएगा, एक बार 5 के लिए जाएगा, तो दिस x इज इक्वल टू 1 मैंने रखा तो दिस विल बी, फर्स्ट विल बी 2, सेकंड विल बी 5 एंड सेकंड टाइम जब मैंने 4 रखा तो फर्स्ट विल बी 5, सेकंड विल बी 2। यही दो फैक्टर्स हैं जिसमें ये वर्क कर रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है हमारे पास राइट साइड की, ये
पॉजिटिव क्वांटिटी है ग्रेटर देन 1 होगी, ये भी क्वांटिटी जो मेरे पास है, अगर पॉजिटिव के लिए भी हमारे पास जा रहा है नंबर -4 से +4 के बीच में है, नेगेटिव हो नहीं सकता। पॉजिटिव जाने का मतलब है कि 100% इस नंबर को 0 से 4 के बीच में ही जाना चाहिए। दोनों के फैक्टर्स मेरे सामने हैं, एक रैशनल दूसरा रैशनल नंबर कभी एक दूसरे को सॉल्व नहीं कर सकता। करने का सिंपल तरीका मेरे पास ये है, ये इस रीजन से मैंने ये बताया था, क्योंकि और कोई भी तरीका मेरे को स्क्वायर करना 4 डिग्री वगैरह वगैरह बहुत लंबा जा सकता है, बट ये बहुत सिंपल से आपकी कहानी बना सकता है। इज इट ओके? बट आप लोगों ने इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो तो पूछा ही नहीं। ओके, चलें आप लोगों के बारी, आज तो आज आप लोगों का दिन है, आप ही लोग पूछ लो। इसके अलावा कोई नहीं है इसमें, राइट? उसके बाद 900 में कौन सा नंबर था 900 का? सेंड मी क्वेश्चन प्लीज। 900 के कौन से क्वेश्चन थे? हरिप्रिया क्वेश्चन भेजना बच्चा। क्वेश्चन भेजो कोई, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। पेपर भेजना कोई। सर 1 मिनट भेज रहे। एक 903 देख लो पहले, जब तक पेपर आपको भेज रहे हो। 2x - 1 का मॉड लेस देन 4x + 1 का मॉड, राइट? इसे सॉल्व करना है। क्या दिक्कत गई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? किसका डाउट है प्लीज बोले, क्या प्रॉब्लम जा रहा है? भेज दिया सर, हम्म भेज दिया पेपर। इसमें क्या प्रॉब्लम जा रहा है, किसका डाउट है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। a + b a - b लगा दिया, आ गया अपने आप। लेस देन 0, माइनस बाहर निकाल लिया 2, सर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है कि स्क्रीन पे है। हेलो, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आ रहा है स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे। ठीक है ना? 918 x²
plus 2 mod x minus 3 less than equal to 0. तो x square मतलब just factorize this mod x square को मैं mod x का whole square लिख सकता हूँ. So this is plus 3 minus 1 less than equal to 0. We know that this is always positive. So mod x minus 1 less than equal to 0, or x lies between minus 1 to plus 1. Right? 919. Right? X square plus 5 mod x minus 24 greater than 0. ये mod x square लिख सकता हूँ. हो जाएगा ये वाला भी. ठीक है ना? सर आप ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं? mod x minus 3 greater than 0. तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसे करना है. माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी, दोनों ही देख लो ना एक साथ में. mod x minus 3 greater than 0. नंबर लाइन बनाया, माइनस 3 प्लस 3. मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ये बना, ये पोर्शन और ये पोर्शन जो चाहिए आ गया. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके ओके ना. 927 आप लोगों के लिए. एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 अपॉन x minus 3 greater than equal to 2x. Do it fast. देखो नहीं सर, एक सेकंड.
Okay, done. Huh? See. Wait. x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 12 माइनस 2x को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया एंड एलसीएम भी ले लिए. So I am getting this greater than equal to 0, right? So this is coming as x square minus this is this 2x square cancel out minus mod x, right? Plus 6x minus 12 upon x minus 3 greater than equal to 0, right? Taking off minus sign, mod x square plus mod x minus 6x plus 12 upon x minus 3 less than equal to 0. Now it's starting now. एक mod x है और एक mod x नहीं है. मैंने लिखा तो बहुत सारी चीजें, बट ये बोल रहा है क्या लिख रहे हो सर, क्यों लिख रहे हो सर, बच्चे खुद कर लेंगे. मैंने 2x को ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड में, एलसीएम लिया x माइनस 3 को, ये पूरा आया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x माइनस 3 को मैंने राइट साइड ट्रांसफर नहीं किया, राइट कभी मत करना, वो गलत हो जाएगा. सॉल्व किया पूरे को तो हमारे पास सर एक्स स्क्वायर में मॉड क्यों लगाया? एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर दोनों एक ही बात होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. एक्स माइनस 3 ये रिजल्ट तक मैं पहुंच गया. देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. एक्स स्क्वायर लिखो या मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही बात होती है बेटा, इसलिए मैंने वो लिखा है. एक्स स्क्वायर लिखूं या मॉड एक्स स्क्वायर लिखो, दोनों इक्वल क्वांटिटी, राइट. तो नाउ अब यहां से दो केस में आप डिवाइड करो. एक केस होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एक होगा लेस देन 0 के लिए. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर x स्क्वायर प्लस x मॉड x में ओपन अप होगा, राइट, माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन x माइनस 3, राइट. फर्स्ट केस केवल इसी को सॉल्व करते हैं, राइट, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, राइट. अब ध्यान से सोचो, अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, क्या ये फैक्टराइज होगा नहीं होगा, यही सोचने की बात है, राइट. तो दिस इज d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. तो d लेस देन 0 है, मतलब ये क्वांटिटी या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. कोई भी एक मनपसंद वैल्यूज पुट करके देख लो, सबसे अच्छी वैल्यू 0 हो ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव. मतलब केवल और केवल मेरे को नंबर लाइन सिस्टम में x माइनस 3 ही जा रहा है एंड 3 के आगे ऑब्वियसली पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव, राइट. और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, दोनों को मिलाया तो यहाँ से 3 टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास आंसर आ ही गया 1. अब x लेस देन 0 पर जब मैं सॉल्व करने जाऊं, ये होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, मीन्स x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. ध्यान दो, ये फैक्टराइज जब होगा तो ये फैक्टर है x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. कभी भी गलती से x माइनस 3 को कैंसिल मत कर देना, राइट.
कभी भी x माइनस 3 जो भी हो रहे हैं उसको कैंसिल मत कर देना, कैंसिल किए और कहानी खत्म। तो 3 को 2 बार लिखूंगा रिपीटेड रूट्स के कारण, 4 को 1 बार लिखूंगा, 4 के आगे की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही रह जाएगा। मुझे चाहिए भी क्या, लेस देन इक्वल टू, राइट, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, राइट। अब लेस देन इक्वल टू 0 कब है, तो माइनस इन्फिनिटी से ये है, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन यहाँ पर भी है कि मेरे को x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो ये पूरी लेस देन 0 वाली पूरी वैल्यूज लेने को तैयार है। तो x लेस देन 0 की पूरी वैल्यूज ले लिया और यहाँ पर ले लिया वो 3 से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इज इट ओके? एक मिनट, ये अच्छे क्वेश्चन में कहलाएगा, यू हैव टू बी केयरफुल। जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व करो, बिना सॉल्व किए कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। Yes, sir. Done. डन। सर इसका आंसर क्या रहेगा? ये लिखा ना नीचे, सर दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, बट अभी मैं 0 कहाँ से आया? ये था ना बेटा, x लेस देन 0 पर ही तो स्टार्ट किया था तुमने कहानी पूरी, ये वाली वहीं के लिए चेक कर रहे थे ना। उसके नेक्स्ट स्टेप में आपने सर वो तो प्लस होगा ना? क्या एक बार फिर से? तो फर्स्ट केस में 3 टू इन्फिनिटी में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना? हाँ, तो 3 टू इन्फिनिटी तो 3 पॉजिटिव ही होता है ना। थ्री तो पॉजिटिव ही रहता ना। मुझे चाहिए था आंसर 0 टू इन्फिनिटी में और आंसर आई 3 टू इन्फिनिटी, तो मैंने बोला ठीक है 3 टू इन्फिनिटी आंसर होगा। अच्छा हाँ हाँ। सेकंड में आंसर चाहिए थी माइनस इन्फिनिटी टू 0 में और मेरा आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 4 में। तो हमने बोला भाई मुझे तो चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू 0 में ही, फिर इधर आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है सर बट सर अगर x नेगेटिव है बट x का मॉड तो पॉजिटिव ही होगा ना? हाँ होगा ना 100%, तभी तो माइनस एक्स लिख रहा हूँ ना। x नेगेटिव है राइट, और केवल x लिख दूंगा और x नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस समथिंग आएगी। तो उसके आगे एक माइनस साइन लगाऊंगा तो वर्चुअली वो पॉजिटिव हो गया। नहीं समझी? सर हाँ नहीं, पूरा समझा लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखा वो नहीं समझा बस। फाइनल आंसर को दो अलग अलग पार्ट में हमने पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था उस समय आंसर आया 3 टू इन्फिनिटी, तो मैंने बोला आंसर मेरा 3 टू इन्फिनिटी होगा। सेकंड केस में x लेस देन 0 के लिए मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर जो आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 4 आ गया। बट मैंने बोला भाई मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं, 0 से 4 तक तो मैं जा ही नहीं सकता, मैं तो पेरेंट कंडीशन ही मेरा लेस देन 0 पर था ना। जो पेरेंटल कंडीशन था मेरा, ध्यान से देखो, ये जो लिया था हमने सेकंड केस वो तो लेस देन 0 पर ही लिया था हमने। आई बात समझ में? हाँ सर आप समझा। ये यहाँ जो किया है, एक मिनट कलर चेंज करूंगा तो देखना आसान पड़ेगा। ये क्या लेके चला था मैं इस सॉल्यूशन के लिए, ये पूरे सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लेके चला था, x लेस देन 0 लेके चला था ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये ग्रेटर देन 0 के लिए जब लेके चला तो 3 टू इन्फिनिटी आया, तो दोनों अलग अलग है ना। ओके सर समझा। ओके यस सर।
ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस आप लोग नेक्स्ट क्लास के पहले कंप्लीट कर लेना, बट अभी एग्जाम की तैयारी करो सब लोग अच्छे से। एंड 100% से नीचे स्कोर एकदम ही वैलिड नहीं है आप सबके लिए। मैथ्स में 100% एकदम आना चाहिए। राइट डाउन यस, जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आना ही चाहिए। आई एम वेटिंग। मैथ्स में 100% से नीचे का मतलब ही नहीं होना चाहिए। जहां पर दिक्कत जा रही, जो भी लगता है दिक्कत होगा उसको अलग से नोट करो, मेरे से डिस्कस करो, जो भी हो सकता है करो, बट मेरे को नहीं चाहिए 100 से नीचे इस बार। ओके चलो, वेरी गुड। हाँ, गुड नाइट। तैयारी शुरू कर दो। कहीं भी दिक्कत जा रहा है डिस्कस करो, मैसेज करो, जो करना है जितना लगता है करो, जो मेहनत हो सकता है रिवाइज करो। 100% जितना अच्छा आप लोगों का प्रिपरेशन है आराम से 100% आएंगे। ओके चलो, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय।